अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये बुनियाद की आवाज़ आ रही है। हाणे अचे पई आवाज़। अच्छा, हाणे क्लियर अचे। माइक ते इलाही क्लियर अचे। हाणे अचे थो। हेठि त सभिनि खे करे छॾियो। हाणे सही आहे आवाज़। अच्छा, पोइ शुरू कयां बसि ये, लेकिन इन जी आवाज़ वॉइस से जेको सम्झ में अची वञे सभिनि खे इंशाल्लाह। ठीकु आहे। So today my topic of the lecture is headache. It's a very common problem which an every person experience in our life and having a headache. So you all have a experience a common symptom of headache. So first of all, I'll give you a scenario, and then I think you are resolve this scenario after completing the lecture. So you diagnose what she has a problem. Scenario is the patient having a 32 years old woman comes to office complaining of a headache that started 2 days ago. She located a headache in the right side of her head and described it to the following intellectually. The headache is worse by the walking up the stair or around the block. She experienced nausea but denied vomiting. She also said that loud cries and bright light expressed is a separate. So this is a scenario. So you focus the scenario and keep in the mind. So what differential diagnosis in your mind? What is the headache? So first of all, she is a female and she is a 32 years of age. And the headache is a dominant. It's on one side. And the character of a headache is a throbbing type. And the aggravating factor of the headache in this lady is because of loud noise or increased words on walking and the aggravating the bright light. Which three or four things in this scenario. Means young lady and eliminating headache and the aggravating due to the sunlight or a distance. So keep in mind. So finally, when I have completed my lecture, I want to know what is your diagnosis. So before I start the further lecture, so you must keep in your mind the patient, if any patient come in your OPD or in the ward side, you must mention or in a mind you think about the worst condition of the headache and you are more alarming or focusing when patient describe I have a headache but these silent symptoms. Which silent symptoms? So one says I have headache, but the headache is the worst headache of my life. मीन्स ऐसा दर्द जो कभी मेरी जिंदगी में मुझे नहीं हुआ। तो इसके लिए आप एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। तो फिर हम सोचते हैं कि इस तरीके का हेडेक किसी को हो, मतलब कि आए और बताए कि ऐसा दर्द
कभी मैंने जिंदगी में महसूस नहीं किया। Means you think about the patient having a suboptimal headache. वो एक तो ये हो गया। दूसरा वर्सनिंग सिम्टम्स ओवर डेज टू वीक्स। अगर वो हेडेक जो है वर्स हो रहा है, मतलब डिटोरिएट हो रहा है, हेडेक के साथ अगर पेशेंट्स की जो है अल्टर लेवल ऑफ जो है कॉन्शियसनेस हो रही है, मतलब he or she feels any neurological deficit or a headache associated with the vomiting, nausea, or a patient having a fever, so we think about alarming headache. And so fourth one is the patient having any abnormal neurological examination. Means if a headache, patient having a headache, severe headache, and you found the patient having any neurological, it's either patient having a hemiplegia, monoplegia, or a paraplegia. Any abnormal neurological examination, so you think about the patient having alarming headache. It's a red flag sign of a headache. If this patient having came in a OPD or in a ward with a sign and symptom of a neurological exam, when you examine the neurological patient having a paraplegia, monoplegia, or patient having a reflexes are exaggerated, you think about the patient having a problem in neurological problem. I say the patient having a headache with the fever. It's also a red flag sign. It might patient having a headache and fever, we think about might be patient having a headache due to the meningitis, encephalitis, or cerebral malaria, or tuberculosis malaria. आवाज आवाज हेलो हेलो कोई आवाज हेलो हेलो जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो मैम बहुत कम आवाज आ रही है सर की और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। चलें ठीक है। हाँ थोड़ा सर लाउडली ॻाल्हायो, मुंहिंजी वञेनि थी। हाँ तव्हांजी आवाज़ थोड़ी लाउड न आहे, इन जे करे मूंखे ॿुधण न पियो अचे। आवाज़ वञे थी पई, घटि थी वञे। घटि वञे थी बार बार आवाज या घटि थी पखो बंदि करे छॾियो हा आहे, पको बंदि थोरो तेज़ ॻाल्हायो। हेलो तो patient having a headache with a fever, this means patient having a red flag sign. If patient having a headache or precipitate or aggravating during coughing or bending or left a patient will aggravate during the coughing or leaning forward or age is patient having a more than 55 years old. These are also a red flag sign of a headache. मीन्स अगर किसी को हेडेक बढ़ जाए खांसने से या जो है लिफ्ट बेंडिंग करने से आगे झुकने से, तो या उसकी एज जो है अगर उसको दर्द हो सर में शदीद दर्द मोर देन 55 ईयर्स की एज में, तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए भी आपको थिंक अबाउट द पेशेंट हैविंग अ रेड फ्लैग साइन ऑफ अ हेडेक। So first of all, definition of headache. Headache is defined as a pain located in the head, neck or jaw. इसका मतलब ये है कि headache में ए पेन जो है not in the head only but in the neck
or a jaw. Means concerned with the neck or a jaw. So how it's concerned with the neck and jaw? Means patient having a problem in the neck, means is a cervical myelopathy are involved in the cervical myelopathy. Also patient feel a pain in the head. So are in the jaw. So the jaw diseases like a toothache or a patient temporal arteritis, these are also patient present with the headache. So the definition of a headache is a pain located in the head, neck or a jaw. So so clear what is the headache? So मैं लर्निंग ऑब्जेक्ट्स मुझे क्या जो है बताना है इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में। तो पहले तो आपको कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक आने चाहिए कि हेडेक के कॉमन टाइप्स कौन से हैं। और दूसरा तो जो मैंने बताया है कि हेडेक विद द रेड फ्लैग्स मीन्स अलार्मिंग हेडेक कौन सा होता है, क्योंकि जो है एक तो कॉमन हेडेक करके हम जो है मिस कर देते हैं कि ये सिंपल हेडेक है और इसको जो है कोई पेन किलर देकर और पेशेंट्स को जो है डिस्चार्ज कर दें या ट्रीटमेंट देकर छोड़ दें, मगर नहीं, कोई ऐसे साइंस भी हैं। अगर हेडेक के साथ वो साइंस आते हैं तो इट्स डेंजरस हेडेक और यू मस्ट बी admitted in the patient and for the workup and the to take a detailed history and the examination. Okay. So according classification, तो दो तरीके की क्लासिफिकेशन है फॉर द हेडेक। वन इज अ प्राइमरी हेडेक एंड second is a secondary headache. Primary headache, so why we call the primary headache? प्राइमरी हेडेक हम तब बोलते हैं जब पेशेंट्स को कोई सिस्टमिक इलनेस की वजह से हेडेक ना हुआ हो, it's not associated with the systemic illness, we called as a primary headache. Secondary headache is a less type of a headache, which only 10%, but the primary headache is a 90%. सेकेंडरी हेडेक वो होता है जो सिस्टमिक इलनेस की वजह से जो है आपको हेडेक हो। वो फर्दर हम जो है आगे चल के क्लियर करेंगे कि प्राइमरी हेडेक में क्या है, सेकेंडरी हेडेक में कौन सी चीजें आती हैं। सो क्लासिफिकेशन प्राइमरी हेडेक एंड द सेकेंडरी हेडेक। तो द प्राइमरी हेडेक देखो ये मेजर पोर्शन है प्राइमरी हेडेक का, इट्स कंसर्न इज द 90% प्राइमरी हेडेक। सो मेनली द प्राइमरी हेडेक है थ्री टाइप्स, वन इज अ मिग्रेन, second one is a tension type and third one is a cluster headache. So बारी बारी जो है इनको हम जो है क्लियर करते जाएंगे कि मिग्रेन क्या है, टेंशन हेडेक क्या है, क्लस्टर हेडेक क्या है। And the secondary headache is a lot of causes. So one of the bigger causes is that we call as a space occupying lesion, in which containing the tumor, abscess, or patient having any mass, meningitis, or a patient having a giant cell arteritis. These are the secondary headaches. So primary headache means patient having a problem in the brain, so concerned with the migraine, tension, and the cluster headache. But the secondary headache is a lot of causes. Okay. So when you start the patient have a complaint of a headache, so how to further proceed in the history? So I have already told you in a previous lecture, for the pain you mentioned that one is formula is a Socrates formula. Socrates is a monomeric. S for the site, O for the onset, C for the character, R for the radiation, A for the aggravating and the relieving factors. So these are the formula। आप जिसमें भी हिस्ट्री लेंगे पेन के फार्मूले में, पेन अगर कोई बता रहा है कंप्लेन, अगर पेशेंट्स को पेन है, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट्स को चेस्ट पेन है, तब भी आपको यही जो है फार्मूला यूज़ करना है। अगर किसी को जो है हेडेक है तो उसमें भी आपने ये जो है एक सोक्रेट्स वाला फार्मूला जो है यूज़ करना है, क्योंकि ये जो एक तो साइट जो है, साइट से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि हेडेक बायलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है, अबोध आय होता है, फ्रंटल एरियाज पर होता है, ऑक्सीपिटल एरियाज पर होता है, होल एरियाज ऑफ ब्रेन होता है। तो साइड से भी हम काफ़ी चीज़ें जो हैं हम एक डायग्नोज कर सकते हैं हेडेक की। मसलन एक पेशेंट है जिसको जो है एक साइड पर पेन हो रहा है शदीद, वो पेशेंट बता रहा है कि मुझे जो है साइड जो होती है यूनिलेटरल होती है पेन की, यूनिलेटरल राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो वो पेन जो है
रेडिएट करता है अगर वो पेशेंट्स की बैक पर और पेशेंट्स के आर्बिट पर, और पेशेंट्स को जो है वो सी ऑनसेट, ये और ऑनसेट सीवियर इन ऑनसेट होता है, मीन्स वो शदीद नहीं होती है। अगर हम वो कैसे असेस कर सकते हैं कि ऑनसेट सीवियर है, सीवियर जो है सीवियरिटी हम पेन की ऐसे असेस कर सकते हैं। हम किसी को बता सकते हैं कि अगर किसी को हम कहेंगे अगर ये दर्द अगर हम 10 नंबर दें तो आपको कितना है, वो कहता है कि मुझे जो है 10 में से 10 इतना शदीद दर्द है, या तो 10 में से 6-7 मतलब इतना पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। तो फिर हम उससे पूछते हैं कि ये दर्द जो है करेक्टर कैसा है इस दर्द का, तो जो सोक्रेट वाल फॉर्म और करेक्टर, अगर कोई कहता है कि ये थ्रोपिंग मतलब चपके वाला दर्द ऐसा है कि नसें फट रही हैं, मतलब वो बता रहा है कि मुझे इस दर्द जो हो रहा है जैसे नसें फट रही हैं, या चपके वाला दर्द है, जो शदीद ऐसा दर्द है, वो अपना लैंग्वेज से बताएगा। और फिर हम पूछते हैं कि अगर इस दर्द ये दर्द आपका बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। अगर हेड एक है किसी को, वो कहता है कि मेरा ये दर्द तब बढ़ता है जब शोर होता है, जब किसी का शोर होता है, शोर जो है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। या कोई कहता है कि जब मैं जो है धूप में काम करती हूँ या करता हूँ, लाइटें जब जब लाइट टेलीविजन देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, मीन्स वाचिंग अ टीवी एंड माय हेडेक इज वर्स, so you think about the patient having a problem in the migraine. Okay, so these are the favoring point of a migraine. पेशेंट का पेन होगा, यूनिलेटरल होगा, थ्रोबिंग इन करेक्टर होगा, और एग्रेवेट होगा। कोई कहता कहेगा कि मुझे जो शोर सुनने से हो रहा है, टीवी देखने से हो रहा है, धूप में काम करने से हो रहा है। और कभी कभी जो है जो है एग्रावेटिंग फैक्टर्स में जो है खाने की चीज़ें आती हैं, जिसमें जो है मोस्टली चीज़ है, चॉकलेट है, ऐसी चीज़ें, या इवन पेशेंट ये चीज़ें बढ़ती हैं जब ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल पेशेंट्स जो हेडेक प्रेसिपिटेट होता है। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि पेशेंट्स को मिग्रेन है। तो ये चीज़ें पूछनी है। एक पेशेंट क्या होगा, एक तो हेडेक की करेक्टरिस्टिक्स में जो है आपका लोकेशन, रेडिएशन, क्वालिटी मीन्स करेक्टर कौन सा है, रोम्बिंग इन करेक्टर होगा, एसोसिएट लिविंग, एसोसिएट मतलब ये जो है वो उसके साथ नाजिया फील होगा, वोमिटिंग फील होगा उस पेशेंट्स को। या कभी कभी जो है आरा होता है, आरा जिसमें जो है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आरा क्या है, आरा मीन्स इज अ परसेप्शन। मीन्स पेशेंट कहेगा कि जब दर्द होता है शुरू, तो उस पर जो है पेशेंट्स को कोई स्टार्स बनना स्टार्स नज़र आ जाएंगे, मतलब कि चमकते हुए जो है तारे नज़र आ जाएंगे, उसको ऐसे फील होगा कि लाइटें फ्लैश कर रही हैं, ऐसे फील होगा। तो मीन्स ये भी जो है एक हमें हेडेक आ रहा है मिग्रेन की तरह। तो ये चीज़ हो गई। फिर रिलीविंग फैक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर पूछेंगे कि ये दर्द आपका खत्म कैसे होता है, तो आपने जो है वो बताएगा कि जब मैं अंधेरे में बैठती हूँ, या जो शोर नहीं होता, या जो है लाइट जब ऑफ होती है, तो कुछ मुझे सुकून मिल जाता है। तो ये भी आपकी एक फेवरिंग है फॉर द मिग्रेनिक हेडेक। और हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पूछने हैं। अगर किसी का हेडेक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में जो वेट लॉस आ गया, हेडेक का फीवर आ गया, तो बॉडी एक आ गया, तो ये सिम्टम्स भी हम पूछते हैं। और जो है हम रिस्क फैक्टर पूछते हैं। रिस्क फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, हाइपरलिपिडीमिया, ये तीनों रिस्क फैक्टर हैं जो है हेडेक में, मतलब कि पेशेंट्स को हेडेक है और पेशेंट आपके वार्ड में आया है हेडेक, और प्लस में पेशेंट्स को जो है अगर किसी को हेमिप्लेजिया है, मीन्स वीकनेस है आर्म की, लेग की, तो ये हम सोच सकते हैं कि ये हेडेक इसको स्ट्रोक की वजह से हुआ है। ठीक है, या जो है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से इसको जो है, या जो है इसमें इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, सबआर्कनाइड हेमरेज आ सकता है। तो ये चीज़ें एक फेवर कर सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने एक तो डिटेल हिस्ट्री लेनी है, फिर हमने जो है इन पेशेंट्स का, हेडेक के पेशेंट्स का हम जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सब वेरी मैंडेटरी। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इज़ वन ऑफ द मेन, ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मगर और मोस्टली जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन उसकी हेडेक भी हो सकती है ब्लड प्रेशर की। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इन लो ब्लड प्रेशर, दोनों में पेशेंट्स को जो है हेडेक हो सकता है।
और हम फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी में हम ये फिजिकल एग्जामिनेशन में फंडोस्कोप किया जाता है। अगर किसी को हेडेक विथ अनकॉन्शियसनेस है तो हम उसको जो है फंडोस्कोप करेंगे। फंडोस्कोप में हम क्या करते हैं कि वो रेज्ड आईसीस की वजह से जो है पेपिलो एडीमा होगा पेशेंट को फंडोस्कोप में, तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन में उस पेशेंट्स का देख सकते हैं। और आस्कल्टेशन में हम ब्रूई दे सकते हैं। ब्रूई मतलब कि कैरोटिड ब्रूई है पेशेंट्स को जो है स्टीनोसिस हो गया है, कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक हो गया है, तो हम आयोटिक ब्रूई दे सकते हैं उस पेशेंट्स की। और टेम्पोरल आर्टरी इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन कर सकते हैं। ये फॉर द जॉइंट सेल आर्थराइटिस जिसमें जो है सीवियर हेडेक होता है वो अलग है, वो ओल्डर एज में होती है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस उसमें भी पेशेंट्स को कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक होता है। फिर हम साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, वो जो है इम्पॉर्टेंट होती है वार्ड में। साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस पेशेंट्स को हम एक होती है नेक रिजिडिटी एंड दूसरी होती है कर्निंग साइन। दो साइंस करवाते हैं पेशेंट्स को हम जो है नेक फ्लेक्स करके पेशेंट्स को पेन होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स में, वो हम पूछते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स फीलिंग अ पेन व्हेन द पेशेंट हैविंग अ नेक फ्लेक्स। नेक रिजिडिटी एंड कर्निंग साइन दो चीज़ें वो भी हम जो है क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन से हम कर सकते हैं। और एक फुली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट्स का करेंगे जिसको हेडेक होगा, और हेडेक और अल्टर लेवल ऑफ जैसे फीवर है या पेशेंट्स को पर्सिस्ट वोमिटिंग है, तो उसमें हम मोटर पे एग्जामिनेशन करेंगे कि किसी को वीकनेस तो नहीं है हेडेक के साथ, किसी को हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया ये चीज़ें तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में करनी है हेडेक के में। तो अब हम आते हैं कि मैंने जब पहले ही बताया है कि हेडेक दो टाइप्स होते हैं, वन इज द प्राइमरी हेडेक, वन इज अ सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक वो होता है जिससे सिस्टमिक डिजीज से एसोसिएशन ना हो, जिसमें मैंने बताया कि तीन टाइप्स हैं, वन इज अ मिग्रेन, टेंशन, और तीसरा है क्लस्टर हेडेक। तो ये है प्राइमरी हेडेक जो है, वन इज मिग्रेन। अब मिग्रेन जो है मिग्रेन विदाउट आ रहा, मिग्रेन विथ आ रहा, टेंशन हेडेक कॉम्बिनेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और फाइनल इज है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक अलग टाइप वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सो पहले तो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिग्रेन की बताई कि पेशेंट्स जो है मिग्रेन वाला जो मैंने सारी डिटेल बताई कि साइट ऑनसेट कैरेक्टर इरिटेशन एग्रावेटिंग रिलीविंग, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया है कि मिग्रेन की प्रेजेंटेशन क्या है। क्योंकि मिग्रेन जो है मोस्टली जो है अक्सर जो है आपके ओपीडी में या जो है घर में काफ़ी जो है प्रॉब्लम होता है, मगर इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो मैंने जो की पॉइंट्स बताए मिग्रेन वाली, ये पेशेंट्स को यूनिलेटर मोस्टली यूनिलेटर होता है, यूनिलेटर पेन, थ्रोम्बिंग इन कैरेक्टर, और पेशेंट्स को एग्रावेट होता है ड्यूरिंग जो है सनलाइट है, लाउडिंग शाउटिंग या जो है वो चीज़, ये सारी चीज़ें रिलीविंग जो है डार्क रूम में, ये चीज़ें हैं। आरा मीन्स सम पेशेंट हैविंग आरा मीन्स परसेप्शन, कौन सी हो सकती है, मोटर हो सकती है और सेंसरी हो सकती है। आरा आरा मीन्स पेशेंट्स को फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स हो सकता है। आरा मतलब जब जो है शदीद दर्द हो तो उसको ये चीज़ें कहता है कि जो है मुझे फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स हो गई, स्टार्स जो है स्टार्स अपीयर ये हो गई, या इवन पेशेंट्स को जो है नमनेस हो सकती है उसी टाइम सर में दर्द के साथ, नमनेस सुन हो जाना बाजू का। तो ये चीज़ें जो है इवन इंटर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ प्रेजेंट भी हो सकता है सम टाइम में भी। तो ये क्लासिक जो है प्रेजेंटेशन है मिग्रेन की। और ये जैसे बताया विजुअल आ रहा क्या कहते हैं, जिसके अंदर स्टार्स हो, स्पार्क्स हो, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स जो है उस पेशेंट्स को इसके साथ। Another type of migraine is a basilar migraine, which basilar means involvement of the brain stem। वो एक हमें जो है एक इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि इसको जो है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है या बेसिलरी मिग्रेन है, ये सेम प्रेजेंटेशन है।
उसको जो है हेडेक के साथ जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा, सीवियर वर्टाइगो मीन्स चक्कर ज़्यादा आना, दो दो नज़र आना, मीन्स गेट्स मतलब तवाज़ुन अपना खड़ा, एटेक्सिक होगा मीन्स चलेगा तो गिर जाएगा, मीन्स इट्स अ patient having a basilar migraine. It's also very difficult to differentiate the stroke in the brain stem. तो ये एक टाइप है जो है मिग्रेन की, एक क्लासिकल मिग्रेन है, दूसरा जो है बेसिलर मिग्रेन है। तो ये जो बेसिलर मिग्रेन है ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है सीवियर हेडेक के साथ, चक्कर के साथ, डिप्टोपिया, एटेक्सिया, डिसआर्थिया, डिफिकल्टी इन स्पीच, मतलब वो बोल भी नहीं पाता। तो ये एक टाइप है मिग्रेन का। ये प्राइमरी मिग्रेन है। तो हम डायग्नोज किसे करते हैं प्राइमरी मिग्रेन, विदाउट आ रहा है किसी को, जो आ रहा के सिम्टम्स नहीं है तो हम उसमें जो है मोर देन 5 अटैक्स हो, और जो है मोर देन 5 अटैक्स अगर किसी को हो, और ड्यूरेशन उसकी जो है मिग्रेन की जो है 4 से 72 घंटे 4 to 72 आवर्स से ज़्यादा हो, और उसके अलावा या दो से ऊपर ये सिम्टम्स हो, मतलब कि यूनिलेटरल हो, which pain patient having a unilateral. One is a duration. Duration is important. It's begin की ड्यूरेशन 4 to 72 आवर्स तक चल सकती है, और दूसरी जो है इनके अलावा दो और हो या दो से ज़्यादा, या तो इसको एक साइड पर हो यूनिलेटरल पल्सेटाइल मीन्स पल्सेटिक कैरेक्टर मीन्स झटकों वाला या चपके वाला दर्द हो, तो वो भी हम एक करते हैं। इंटरफीरियंस विद द डेली हाणे सही आहे। हाणे ईंदो आहे। हा हींअर ॻाल्हायो ही तव्हां अनम्यूट कयो। अच्छा मूं न कयो बात जीअं हो थी अच्छा वियो। ठीकु आहे वरी कंफर्म वञे थो शायदि। हेलो भी आ रही है आवाज? हेलो वीडियो में सर
हाँ ठीक है। तो तीसरा जो है इसमें जो पॉइंट है कि पेशेंट्स को जो है इनके साथ अगर एक हो या एक से बढ़कर पेशेंट्स को ड्यूरेशन 4 to 72 आवर्स हो, यूनिलेटरल हो, वर्सेटाइल हो और एसोसिएट हो। पेशेंट एसोसिएशन क्या हो पेशेंट्स को, पेशेंट या कंप्लेन करे नादिया की, वोमिटिंग की या फोटोफोबिया। मैंने बताया कि फोटोफोबिया मीन्स पेशेंट को जो है अनईजीनेस पेशेंट्स को फील हो या पेशेंट्स का पेन वर्स हो ड्यू टू द सनलाइट, वी कॉल्ड इज अ फोटोफोबिया। दीज आर द मेन जो है supportive diagnosis of the migraine और नो सेकेंडरी काज। नो सेकेंडरी काज में जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेकेंडरी काजेस में हमने जो है 10% होते हैं, 90% प्राइमरी काज होते हैं। सेकेंडरी काज वन ऑफ द पेशेंट हैविंग अ पेशेंट हैविंग एसओएम स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन मोस्टली जो है वो मैं डिटेल बाद में क्लियर करूंगा। So I think you have a clear what is the migraine. So what is the characteristic of a migraine? How to present our case of a migraine? So we will discuss the treatment in the later. So second one is a common type is a tension type headache. So I think it's a more common in a migraine is a tension type of headache. So tension type of a headache क्यों कॉमन है, क्योंकि जो है ये तो इन्वायरमेंट है। अभी तो जो है ये ज़्यादातर बहुत सारा जो है आप में से भी फील होगा टेंशन टाइप है, क्योंकि ये कोरोना का जो पीक चल रहा है इसमें जो है सब किसी को जो है इस तरीके का हेडेक फील होता है। कोरोना है या जो है अपनी इन्वायरमेंट सोसाइटी इन चीज़ों से जो है इट्स अ वेरी कॉमन टाइप टेंशन टाइप हेडेक। तो टेंशन टाइप हेडेक जो है मोस्टली इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी प्रेजेंटेशन जो है पेशेंट कहेगा कि उसको जो है हेडेक जो होगा वो इतना सीवियर नहीं होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, मगर उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोर्टेंट है। वो क्या बताएगा आपको, या स्पेशली मेल या फीमेल जो भी होगा, तो वो कहेगा कि मुझे सर में इस तरीके का दर्द है जैसे कोई जो है दबा रहा है, हेवीनेस और टाइटनेस इन टाइटिंग बैंड, मतलब कि जो है मेरी जो है पट्टी दिमाग में बंदी है ऊपर जोर दे रहा है, इससे ये क्लियर है उनको बोझ है। तो ये चीज़ें इस टाइप का करेक्टर बताएगा। तो ये जो है ड्यूरेशन इसकी ये है कि सारा सारा दिन रह सकता है उसको जो है हेडेक, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। और हम अगर पूछेंगे कि अगर ये दर्द अगर आप उसमें, तो हमने कहा कि मोस्टली जो है यूनिलेटरल होता है, लेकिन टेंशन टाइप हेडेक मोस्टली जो है आपका पूरे सर में दर्द मीन्स बायलेटरल होगा, मीन्स ऑल ऑफ द हेड इवन रेडिएट टू द नेक मसल्स, पोस्टीरियर नेक मसल्स, जैसे जो है कंप्लेन करेगी कि जो है मेरे जो है नेक मसल्स हैं वो खिंच रही हैं, उस पर प्रेशर आ रहा है और एक वजन सा है, उनसे जो है सर पे जो है कोई पट्टी बंधी हुई है, टाइट बैंड लाइक जस्ट लाइक, जैसे इस तरीके का वो जो है टेंशन टाइप जो है। हम फिर जो फर्दर इंक्वायर करेंगे, अगर हम जैसे फर्दर इंक्वायर करना है, मतलब एसोसिएट है, रिलीविंग है, एग्रावेटिंग है, तो उनसे जो है एक साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि अगर टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है तो हम उसको कैसे डिग आउट करें, सो हाउ टू डिग आउट पेशेंट, तो हमें उसके लिए फर्दर इंक्वायर कोट करनी है। एक तो पेशेंट्स की जो है आप पेन का देखना है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेन देखनी है, और डल एक पेन होगा तो हम जो है फर्दर उसको इंक्वायर कैसे कर सकते हैं पेशेंट की साइकियाट्रिक हिस्ट्री में। जो पेशेंट्स की एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने पड़ेंगे, कि जैसे आपको जो है मायूसी है, तबीयत में गुजारा नहीं है, आपको होपलेस हेल्पलेस जो है, आपको सराउंडिंग में क्या है, आपको सराउंडिंग में लोग अच्छे लगते नहीं लगते, आप जो है अकेलापन तन्हा पसंदी जो है लोनलेस पसंद नहीं करते, आपको शूट तो पसंद नहीं है, तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये सवाल जैसे सेकेंड में मोस्टली जो है
पूछते हैं, जिसमें हम जो है लेबल करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। डिप्रेशन में भूख का ना लगना और चिड़चिड़ापन होना। तो उस इनमें जो है मेन प्रेजेंटेशन पेशेंट्स को परसिस्ट हेडेक होगा, वो भी जो है टेंशन टाइप हेडेक होगा, क्योंकि हमें सपोर्ट करेगी कि ये चीज़ें। मगर ये कि हम जो है हेडेक को देखकर जो है काफ़ी जो है यहाँ ओपीडी पर हम सोचते हैं कि अगर यंग फीमेल है या मेल है तो हमने जो है हेडेक देख लिया तो उसको या टेंशन या एंजाइटी के और उसको हम जो है ट्रीटमेंट दिए और छोड़ दिया। मगर हमारे मेडिसिन में ये चीज़ें जो है हम एंजाइटी और साइकेट्रिक प्रॉब्लम लास्ट में देखते हैं। फर्स्टली वी एक्सप्लोर द आर्गेनिक, तो आपको भी ये करना है कि पेशेंट से आर्गेनिक हिस्ट्री लाजमी है। जैसे पेशेंट्स को जैसे कोई सेकेंडरी के पास नहीं है हेडेक का, बल्कि वो चीज़ें आपको लाजमी पूछनी, क्योंकि ऐसा मिस ना हो जाए कि ब्रेन में अगर कोई यंग है पेशेंट्स को हेडेक है, ट्यूमर पड़ा हुआ और मिस किया हो तो वो एक ब्लंडर हो जाए। और ये है कि टेंशन टाइप हेडेक कॉमन है, मगर उसके साथ ये है कि आपको एसोसिएशन की चीज़ें आपको पूछ लेनी है। तो नींद का पूछ लेना है कि आपको नींद को डिस्टर्ब नहीं है, रैम स्लीप है या नरैम स्लीप है, मतलब कि बार बार आँख खुलना, आप गहरी नींद ना आना, तो ये है, ये चीज़ें जो है आपको टेंशन टाइप हेडेक में जो है मोस्ट कॉमन मिलेगी। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक्स है टेंशन टाइप हेडेक्स की। तो ड्यूरेशन जो है 30 मिनट टू 7 डेज तक हो सकता है पेशेंट्स का, हो सकता है। और दूसरा जो है ये दो या दो से ज़्यादा ये चीज़ें हैं, प्रेसिंग टाइटनिंग नॉन पर्सिटाइल हेडेक, उसको जो है ऐसे दबा रहा हो कि जो है इस तरीके का मतलब कि जो है आपको वो पेशेंट्स को हेडेक हो। और इंटेंसिटी नॉट अ सीवियर, इट्स माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी। or especially I have already told you that headache of the tension type of headache is a bilateral, not a unilateral, mostly bilateral. तो नॉट एग्रेवेटिंग बाय रूटीन एक्टिविटी, जिस जो उसमें मैंने बताया था रूटीन एक्टिविटी, अगर वो तो बैठा भी होगा तो उसको दर्द होगा, टेंशन टाइप हेडेक। तो किस तरीके की भी होगा, चलेगा फिरेगा बैठेगा तो उसको हेडेक होगा। मैंने मिग्रेन में ये बताया था कि वो जो है सनलाइट में या टीवीएस को टीवी ज़्यादा देखने से, शोर सुनने से बढ़ जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। ये चीज़ें टेंशन टाइप हेडेक में नहीं होती। कभी कभी ये मिक्स पिक्चर होती है कि पेशेंट्स को जो है टेंशन टाइप और मिग्रेन, तो उसको जो है हम बहुत मुश्किल है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो है मिग्रेन भी एक अलार्मिस्ट, मिग्रेन भी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है पेशेंट्स को जो है सीवियर अटैक होते हैं। तो उस अटैक की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट में होता है, टेंशन भी होती है और मिग्रेन भी होता है। तो वी आल्सो मैनेज विद द टेंशन प्लस में मिग्रेन। So one I have described the migraine headache. Second one is a tension headache. Third one is a cluster headache. ये एक डिफरेंट टाइप है हेडेक। ये क्लस्टर हेडेक में जो है पेशेंट्स को जो है ऑनसेट जो है किस में एज में होता है, स्पेशली एट द 25 to 50 years of age, मेल इज प्रीडोमिनेंट इन द फीमेल। एट द फीचर्स क्या होंगे पेशेंट्स को जो है, पेशेंट को सीवियर अटैक ऑफ पेन होगा। सो और ये भी पेन जो है यूनिलेटरल हो सकता है, स्पेशली जो है यूनिलेटरल ऑर्बिटल, ये जो है सेम फीचर्स हैं मिग्रेन वाले। मगर इसमें जो है दूसरी जो सपोर्टिव चीज़ें हैं वो ये है कि पेशेंट्स को रेडनेस ऑफ आइज होगा, एक्सीलेटर मीन्स जहाँ दर्द होगा उसी से एक्सीलेटर, कंजक्टाइव इंजेक्शन मीन्स रेडनेस आपका कंजक्टाइव होगा, सीवियर रेडनेस होगी, लैक्रिमेशन मीन्स जो है आंसू वो ज़्यादा आना, मीन्स लैक्रिमेशन उसी साइड में ज़्यादा होना, और वो नेजल कंजेशन मीन्स नाक का बंद हो जाना। और पेशेंट हम एक कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम, दीज आर आल्सो स्पेशल स्पेशली अकर इन द क्लस्टर। अगर टोसिस है, मियोसिस है, हाइड्रोसिस है, ये चीज़ें भी जो है पेशेंट्स का पेशेंट को क्लस्टर हेडेक में हो सकती है। ये लिखी हुई है इसमें प्रेजेंटेशन में, मियोसिस, टोसिस और जो हाइड्रोसिस, ये चीज़ें उसके साथ यूनिलेटरल टाइप हेडेक, इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ
headache we call is a cluster headache, especially occur in the male, and the patient complaining of foaming in character and along with redness of eye, lacrimation, nasal congestion is the called with the cluster headache. तो मिग्रेनस हेडेक और क्लस्टर हेडेक में डिफरेंशिएशन क्या है कि मिग्रेनस में ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब कि उनकी जो है आंखें लाल नहीं होंगी, सिलेक्टर कंजक्टाइल इंजेक्शन नहीं होगी, लैक्रिमेशन मीन्स आंसुओं का आना, नाक का बंद हो जाना, और जो है प्यूपिल साइज का बिल्कुल जो है छोटा हो जाना, ये चीज़ें जो है मिग्रेन में नहीं होगी, मतलब ये पेशेंट ये क्लस्टर हेडेक में होगी, ये स्पेशल टाइप है हेडेक. So it's a long list of secondary headache. So start from the head, neck. These are the list taken in the slide. One is a cranial, other is extracranial. Extracranial means scalp problem with the patient's head, muscles problem with skull में, carotid and vertebral arteries में हमने मतलब बताया कि stroke हो या stenosis हो उसमें. हाँ, मोस्ट काउंट जो है हमारे पास diabetes में मैंने बताया कि दो तीन जो हेडेक कॉमन बताया, मैंने बताया टेंशन टाइप हो गया, मिग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, और जो होता है वो होता है पैरानासल साइनसिस हेडेक. वो भी जो है हम जो है कॉमन ओपीडी में प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा ये साइनसिस का हेडेक है या जो है मिग्रेनस हेडेक है या दूसरा हेडेक है. साइनसिस और हेडेक होगा तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई किस जगह स्पेशल साइट इज इम्पॉर्टेंट. अगर फोर हेड है तो मैं फोर हेड है तो यहाँ जो है हम देखेंगे तो फोर हेड में ज़्यादा जो है इस तरह साइड पे दर्द है, हम उसको टेंडरनेस भी देखते हैं उसकी, तो टेंडर होगा, और उसके साथ एसोसिएशन या फीचर्स देखेंगे पेशेंट का हेडेक के साथ, उसका नाक बंद होगा ना, जुकाम ज़्यादा रहना, फ्लू ज़्यादा रहना, तो ये चीज़ें हैं, गला खराब रहना, और मैक्सिलरी है तो मैक्सिलरी एरिया मीन्स स्पेशली फेस एरिया पर मैक्सिलरी एरिया पर वो फील होगा और वो टेंडरनेस उधर भी प्रेजेंट होगी. तो साइनसिस का पेन प्रेजेंट होगा, टेंडरनेस होगा, हमारे एसोसिएट फीचर्स होंगे पेशेंट्स को, तो हम क्या पूछेंगे उनसे कि पेशेंट्स को एलर्जी तो नहीं है, मतलब कि डस्ट से या नाक का बंद होना, नाक का बहना, ये प्रॉब्लम पेशेंट्स को होते हैं साइनसिस से. तो सर्वाइकल मसल, सर्वाइकल स्पाइन, ये मोस्टली जो है पेन होगा मसल्स में, मगर रिफर्ड होगा हेड, तो हेडेक के साथ सर्वाइकल स्पाइन या लिगामेंट का पेन भी प्रेजेंट हो सकता है. दूसरा इंट्राक्रैनियल हेडेक, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में जो है सेकंड हेडेक जो होते हैं कॉमन, इसमें जो है मेनिंजाइटिस हो गया, इंकेफेलाइटिस हो गया, सेरिबेलम मलेरिया हो गया, तो उसमें पेशेंट्स को सीवियर हेडेक होता है. और उसके साथ मैंने जो बताया कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फीवर के साथ आगे बुखार आ गया, फिट्स आ गए, क्या आते, तो ये भी चीज़ें हम देखते हैं. या साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशंस, नेक टर्निंग साइन वो देखते हैं. और तीसरा स्पेशली जो होता है जो है एसओ है, स्पेस ऑक्यूपाइंग, ये किसी को ट्यूमर है या किसी को एब्सिस है, ट्यूबरकुलोमा है, टीबी है ब्रेन में, तो उसमें भी पेशेंट्स को हेडेक होगा. तो उसमें ये हेडेक होता है अगर किसी को सेकेंडरी हेडेक है और ट्यूमर के साथ हेडेक है, तो वो पेशेंट क्या बताएगा, स्पेशली उसका जो है कैरेक्टर ये होगा कि डल हेड पेन होगा, डल हेड पेन होगा, आपको ड्यूरेशन में पेन होगा, डल हेड पेन वो बताएगा कि मैं जब लीन फॉरवर्ड करता हूँ, बेंडिंग करता हूँ, मेरा सर बढ़ जाता है, या वो अक्सर वो प्रेजेंटेशन रेज आईसीपी की स्पेशली ये जो होता है प्रेशर का दिमाग का बढ़ जाना की वजह से, तो वो हमेशा कहते हैं कि जब हम नींद में से उठते हैं सुबह, तो अक्सर जो है सर में दर्द होता है और वो वोमिटिंग भी एसोसिएट होता है. तो ये हमें जो है स्पेसिफिक जो है मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो है पेशेंट का हेडेक जो है लिंक बेंडिंग से वो बढ़ जाए, और पेशेंट्स का जो है स्पेशली हेडेक इन द मॉर्निंग टाइम हो, और पेशेंट को और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर एसओएल का हो, तो ये हम जो है इसके साथ जो कर सकते हैं. Okay, come on the red flag signs. So I have already told you, you don't miss the red flag sign.
आपको ज़रूर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि रेड फ्लैग्स मीन्स अलार्मिंग साइंस कौन से हेडेक की हम किन में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है रेड फ्लैग्स मीन्स अलार्मिंग हेडेक हो सकता है means he or she needs emergency or he or she admitted in the high dependent unit or in the ward not on OPD basis. अगर किसी को हेडेक हो over the 50 years of age मतलब 50 साल के बाद अगर उसको शदीद दर्द हो पहले कभी नहीं हुआ हो तो हम उसको मिस नहीं करेंगे उसका वर्कअप करेंगे वर्कअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो सकती है और मेटाबॉलिक प्रोफाइल हो सकता है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में तो सीटी स्कैन ब्रेन तो उसका मस्ट करना है हेडेक के पेशेंट्स को न्यू हेडेक है स्पेशली ओवर एज ऑफ 50 इयर्स सडन एब्रप्ट absence मीन्स जिसमें मैंने पहले शुरू में बताया कि मैंने ऐसा दर्द कभी जिंदगी में कभी नहीं देखा नेवर occurred in my life I feel तो you don't miss the patient and you subarachnoid hemorrhage तो ये चीज़ें भी देखनी कि पेशेंट ने देखे कि मुझे कभी नहीं हुआ मगर ऐसा दर्द है जो कभी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा अगर मैं बोले जो थिंक अबाउट पेशेंट हो गया subarachnoid hemorrhage और एसोसिएटेड फीचर्स हम पूछते हैं न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग मैंने जो बताया कि पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग अगर हेडेक के साथ फिट्स है तो ये रेड फ्लैग्स है फीवर है वो भी रेड फ्लैग्स है फीवर में बस मतलब फीवर फिट्स से हम फिर सोच सकते हैं कि पेशेंट्स को मेनिंजाइटिस मलेरिया हो सकता है पेशेंट्स को या कोई वीकनेस है पेशेंट्स वीकनेस पेशेंट हेडेक के साथ कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है पेशेंट्स को किसी को जो है हेमिप्लेजिया आ गया मोनोप्लेजिया आ गया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ गई तो these are the symptoms or red flags which must admitted in the ward. Okay. So और रेड फ्लैग्स है टेम्पोरल आर्टरी टेंडरनेस ये जो होती है स्पेशली होती है जॉइंट सेल आर्थराइटिस की तो ये भी जो है पेशेंट्स को जो है ये तो एक स्पेशल टॉपिक है डिस्कस लेकर जॉइंट सेल आर्थराइटिस है क्या so now come on how to manage the case of a headache of especially migraine अगर पेशेंट को आपने डायग्नोज कर लिया मिग्रेन का तो हाउ टू ट्रीट तो मिग्रेन हेडेक में एक तो पेशेंट्स को जो है हम देखते हैं कि अक्यूट अटैक्स में कैसे देखना है और सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे करना है क्योंकि मिग्रेन हेडेक जो है परसिस्ट रहता है अगर किसी को डायग्नोज किया गया ये पेशेंट से जाता नहीं है मतलब इसका ट्रिगरिंग फैक्टर वो हमने देखने और प्लस में जो है इसको ट्रीट करना है अगर जो है लंबे ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो मिग्रेन एक आ गया आपने डायग्नोज कर लिया कि इसको मिग्रेन है क्योंकि हिस्ट्री से जो मैंने बताया क्लासिकल मिग्रेन था तो फिर एक्यूट अटैक में तो हमने जो है सिर्फ पेशेंट्स को एक्यूट अटैक्स में एलसिड्स देंगे एलसिड्स तो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो भी हो आपको जो है नेप्रोक्सिन सोडियम स्पेशली यूज करते हैं डिक्लोफेनेक है तो भी आप दे सकते हैं इसका रोल है एक्यूट अटैक्स में या जो है एक आर्बोटामिन जो है होती है जिसमें जो है कैफीन डेरिवेटिव्स है या जो है सुमाट्रिप्टान है ज़ोलमिट्रिप्टान है ये जो है ड्रग्स होती हैं ये जो है नाम याद कर लें आप ये हम जो है एक्यूट अटैक्स में दे सकते हैं पेशेंट्स को तो एक्यूट अटैक्स में अगर पेशेंट प्रेजेंट करेगा हेडेक के साथ सीवियर वोमिटिंग हो तो हम उसके मोस्टली जो है पेशेंट्स को सपोजिटरीज सपोजिटरी के साथ में दवाई देते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं या नेजल स्प्रे में देते हैं So, excuse me, your problem है आता हमारी आवाज न तुझे वैसे इतने कर आवाज न तुझे करी या
एक और पे आवाज नहीं हो रहा तो लिखी नहीं करती तो आवाज नहीं करते मैं यस आवाज आ रही है। देखो बचना होना हाँ ओके सो मैंने बताया when the patient having acute attacks of a migraine, so how to treat? So especially you treat simply with the NSAID. NSAID given either in the injectable form or in the suppository form. Because the patient having the acute attack present with severe headache along with the vomiting. So you cannot prescribe oral drugs in the severe form. So either you give the injectable form or in the suppository. So also with this metoclopramide, it's a prokinetic drug for the anti-emetic. So these are the therapy of the migraine therapies. One is a NSAID, you give the aspirin, acetaminophen, and second one is the triptans. I have already told us the triptan. The name of a triptan is the zolmitriptan, sumatriptan. So two or three drugs is sufficient to remember. Okay, and मैंने ये बताया कि फर्स्टली यू गिव फॉर द एक्यूट अटैक आपने रिलीव कर लिया मगर वो पेशेंट्स को हमने प्रोफाइलेक्टिक देना है फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन की जो है दोबारा उसको मिग्रेनस अटैक ना हो तो उसमें हमारे पास लंबी लिस्ट आती है प्रोफाइलेक्टिक सेकेंडरी प्रोफाइलेक्टिक उनमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आती है एसएसआर आते हैं valproic acid है टोपिरामेट है तो ये काफी लंबी लिस्ट है जो वी गिव द फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन तो ये है कि हम किसको जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन देंगे अगर किसी को हफ्ते में 2 अटैक्स होते हैं तो मतलब कि मिग्रेनस अटैक होते हैं तो यू प्रिस्क्राइब द सेकेंडरी प्रिवेंशन तो वो मैंने सेकेंडरी प्रिवेंशन बता दी तो इस लेस कॉमन ऑफ द टाइप ऑफ द मिग्रेन कंडीशन ये आपको याद नहीं करने मगर मैंने ऑलरेडी बता दिया है हेमिप्लेजिक मिग्रेन क्या होता है हेडेक विद हेमिप्लेजिया ऑफ पेशेंट्स को और बेसिलर मिग्रेन तो मैंने हेडेक विद द साइंस ऑफ अ ब्रेन स्टेम मतलब वर्टाइगो डिप्लोपिया हो कोई टैक्सिक वेट हो तो ये जो है बेसिलर मिग्रेन दीज आर द टाइप ऑफ मिग्रेन तो ये मैंने बताया कि मिग्रेनस प्रिवेंशन के लिए जो है कौन से ग्रुप्स हैं जो आप सेकेंडरी प्रोसेस है वन द फर्स्ट अटैक में उसमें आपने जो है ट्रिप्टॉन देने प्लस एंसर देनी और द सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोफाइलेक्टिक we give these groups either anti-epileptic groups anti-depressant group and the beta blocker तो ये आपके जो है ग्रुप्स हैं जो आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे तो हम कौन सी देते हैं जो है इन पेशेंट्स में मोस्टली ये इफेक्ट जो है हर किसी का अलग है न्यूरोलॉजी स्पेशली कंसर्न ये चीज़ें होती हैं मगर जो हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी को मिग्रेनस हेडेक हो उसके साथ अगर टेंशन हो मिक्स हो तो हम एंटी डिप्रेशन ऐड करते हैं मोस्टली एमिट्रिप्टालिन का जो है जबरदस्त रोल है इसमें या नॉर्ट्रिप्टालिन एमिट्रिप्टालिन तो मोस्टली जो अगर सिर्फ मिग्रेन है सेकेंडरी प्रोफाइलेक्टिक है तो उसमें जो है मोस्टली जो है टोपिरामेट टोपिरामेट का रोल जो है अच्छा है इवन वी कैन गिव द beta blocker or the secondary prevention or profile और ग्रुप्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें डेल्टाज़िन में अगर आप मिल भी दे सकते हैं पेशेंट्स को सो टेंशन डायबिटिक जिसका नाम ही टेंशन तो इसको जो है ट्रीट करना ये कि फर्स्टली जो है काउंसलिंग इज मैंडेटरी साइकेट्रिक जो है असेसमेंट साइकेट्रिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंशन का सो आप यूज कर सकते हैं इवन वाइल्ड टू मोटर एड से इफेक्टिव नहीं होती नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में जो है इवन जो है एक्सरसाइजेस है योगा है या जो है इवन जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है पेशेंट्स को मुख्तलिफ जो है
हम ये चीज़ें करवा रहे हैं। Tension type headache means firstly you diagnose, assess, and counsel. Then you treat the patient about tension type of headache. Okay, so I have already told you a cluster headache. Cluster headache. So cluster headache मैंने बताया था severe form of a headache. So इसमें जो है स्पेशली मिग्रेन से डिफरेंशिएट पॉइंट जो मैंने बताए थे पेशेंट्स का जो है इसीलिए हॉरर सिंड्रोम पेशेंट हैविंग इंजेक्शन ऑफ कंजक्टिवा रेडनेस ऑफ आईज है पेशेंट्स नोज जो है ब्लॉकेज है उसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है स्पेशली वो बंदा जो है सीवियर फॉर्म होता है कि जो है उसको 100% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ही जो है 100% ऑक्सीजन से उसकी थ्योरी तो हमें एविडेंस नहीं है कि क्यों 100% ऑक्सीजन से उसका पेन रिलीव होता है ये नहीं है। और हम जो है उसको इवन जो है हम पेशेंट देखे हैं उनके पास जो है क्लस्टर टाइप हेडेक है उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता ही होता है घर में तो वो जो है 100% उसको ऑक्सीजन की नीड होती है। इट्स अ वेरी डेंजरस एंड सीवियर फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर हेडेक। तो इसमें जो है एक्यूट ट्रीटमेंट में पेशेंट हैविंग नीड है 100% ऑक्सीजन एंड आल्सो रोल ऑफ सोमाट्रिप्टान जो मैंने ट्रिप्टॉन्स बताए हैं सोमाट्रिप्टान है जोर्मिट्रिप्टान है आल्सो रोल ऑफ सोमाट्रिप्टान। फर्स्टली यू डायग्नोस कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको जो है बताया है कि ये जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ हेडेक है क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको पहले ही जो है यूरिलेटर होता है पेशेंट्स को जो है रेडनेस ऑफ आइज होती है लेक्रिमेशन होती है पेशेंट्स को हॉर्नर सिंड्रोम होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट में हम 100% ऑक्सीजन देते हैं या रोल है इसमें जो है रिलीव करने का जो है ट्रिप्टॉन्स में जो है मैंने बताया है सोमाट्रिप्टान जोर्मिट्रिप्टान ये जो है चीज़ें हैं जो हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू। Excuse me? Right? ये क्वेश्चन आंसर आ रहा हूँ क्वेश्चन लेकर पूछा आ गया ഞാനിതാ വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് हेलो हेलो माइक अनम्यूट हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने मतलब बताया था साइड ऑनसेट वाला ये जो सर वो फिर से बताएं हेडेक में मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस हम पूछते हैं। ये मैंने पहले ही बताया है कि वो सोक्रेट्स वाला फार्मूला जो मेनोमेरिक है वो आपको हम पेन के लिए अप्लाई करना है 100%। अब सर स्पेशली आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है आपको आवाज़? यस सर, अब बोलें। जी तो मैंने बताया है कि कोई भी पेन हो अगर चेस्ट पेन हो कोई भी एब्डोमिनल पेन हो हेडेक हो अगर आप सोक्रेट जो फार्मूला होता है वो आप मेनोमेरिक यूज़ करेंगे उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये हेडेक के हिसाब से मैंने जो बताया है डिफरेंशिएट पॉइंट कि हेडेक जो है कभी कभी जो है यूनिलेटरल होता है किसी में बायलेटरल होता है। तो यूनिलेटरल हेडेक में जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो किया था मिग्रेन। ठीक है मिग्रेन लाजमी नहीं है यूनिलेटरल हेडेक सिर्फ मिग्रेन में अगर पेशेंट्स को कोई इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ गया हो ग्लाकोमा हो उसमें भी जो है हेडेक यूनिलेटरल होता है मगर उसमें हम पेन के साथ उसका करेक्टर पूछेंगे। करेक्टर इज इम्पॉर्टेंट। करेक्टर एक कैसे है कि मिग्रेनस का स्पेशली जो है करेक्टर होता है थ्रोबिंग टाइप मीन्स वो कहता है कि जैसे ऐसे कोई जो नब्ज फूल रही हो चटके मार रही हो मतलब उसका अलग एक जो है करेक्टर होता है इस तरीके से
फिर वो जो आगे आपके पास क्लियर करने के लिए जो है पेन के लिए हम पूछते हैं किसी को कि भाई एग्रावेट कैसा होता है, रिलीफ कैसे होता है। क्योंकि मिग्रेन वाला जो एग्रावेट होता है, जो मैंने बताया, ये पेशेंट का पेन होता है, वो जो है अगर पेशेंट धूप में काम करेगा, सनलाइट में, टीवी ज़्यादा देखेगा, जो ब्लिंकिंग होती है टेलीविजन की लाइटिंग की, उसमें जो है ये रिवर्स करेगा। और हम पूछते हैं कि लाउडनेस में शोर के साथ उसका दर्द ज़्यादा हो जाना। तो ये चीज़ें हैं। और रिलीविंग हम जो है पूछते हैं कि अगर मिग्रेन होगा तो रिलीव कैसे होगा सपोर्ट में। वो कहेगा कि मैं जब सुकून के साथ लाइट बंद करती हूँ या करता हूँ तो ये जो है मेरा दर्द कम हो जाता है। तो एसोसिएशन भी जो है हम मिग्रेन के साथ जो मैंने बताई कि अगर मिग्रेन वाला हेडेक होगा तो वो बताएगा एसोसिएशन, नाज़िया हो गया, उसको वोमिटिंग हो गई। और जो आरा होता है परसेप्शन, जो विजुअल परसेप्शन ज़्यादातर होती है, मतलब कि जो है बिजली की तरह चमके आना, ये चीज़ें जो है वो बताएगा कि ये चीज़ें, ये डिफरेंशिएट पॉइंट है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, सही म्यूट है क्या? वेरी गुड। अनम्यूट करके इसमें पाण अनम्यूट कर देता हाँ इसमें पाण से पंहिंजे पाण खे अनम्यूट करे अच्छा, आवाज़ ये क्वेश्चन सब पूरा किया। हितां म्यूट न आहे अच्छा, आवाज़ ने तो उन्हनि जो अचे वो पाण खे अनम्यूट कंदो अनम्यूट कयो अथई। इसमें पाण खे अनम्यूट कंदो हितां जो अनम्यूट करे छॾियो पाण पाण खे क्वेश्चन आंसर ही लिखल हेलो 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 प्राइवेसी है, प्राइवेसी लगन बस चलो हटाए छॾियो हटाए छॾिए। बात हटाए छॾी आहे लॻल हुयो त हटाए छॾियो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। अभी आ रही है? अस्सलामुअलैकुम यस सर। सर। अस्सलाम, कोई क्वेश्चन? सर क्लस्टर सर वरी ॿुधायो। क्लस्टर हेडेक हिकिड़ो टाइप आहे हेडेक जो, इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक। मतलब असीं उन्हनि में सस्पेक्ट करे सघूं था जंहिं पेशेंट्स खे मोस्टली यूनिलेटरल हेडेक हुजे ऐं उन सां गॾु एसोसिएट सिम्टम्स कहिड़ा हुजनि, जंहिंमें जो कमु ॿुधाए राइनोरिया हुजे, माना राइनोरिया में लक हुअण, जो है यूनिलेटरल रेडनेस ऑफ आइज हुजनि पेशेंट जो, ऐं प्लस में जो है पेशेंट खे जेको आहे सो हॉर्नर सिंड्रोम हिकिड़ो स्पेशल फॉर्म ऑफ सिंड्रोम आहे जंहिंमें इनहाइड्रोसिस हुजे, मियोसिस हुजे, इहे सपोर्टिव शयूं हुजनि उन्हनि पेशेंट सां, त उन खे असीं चवंदासीं क्लस्टर हेडेक। क्लियर थियो न? हेलो अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी, सर फंडोस्कोपी रिपीट करें। फंडोस्कोप जो है ना, स्पेशली मैंने ये बताया था कि ये एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होती है। फंडोस्कोप हम जो है एग्जामिनेशन में, जब आप आई की जो है पोस्टिंग जाएंगी तो उधर एक फंडोस्कोप पड़ा होगा, तो उसमें हम क्या देखते हैं
कि पेशेंट्स को अगर कोई एसओएल समझते स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन हो पेशेंट्स को, मतलब कोई मेनिंजियोमा हो या ब्रेन एक्सिस हो या पेशेंट को कोई मास हो, तो उन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि फंडोस्कोप करके के साइंस ऑफ रेज्ड आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितनी है। तो उस पेशेंट्स में हमने फंडोस्कोप करके देखना है कि वो पेपिलोएडिमा तो नहीं है पेशेंट्स को। अगर पेपिलोएडिमा है, हेडेक है, तो मीन्स पेशेंट को प्रॉब्लम है इन द ब्रेन, विच इज अ रेड फ्लैग साइंस हो सकती है। इसलिए हमने उसको फंडोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट जो है ऑप्टिक डिस्क, जिसमें जो है हमने ऑप्टिक डिस्क देखनी है और उसमें पेपिलोएडिमा देखनी है। क्लियर? हेलो 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 जी सर, जी सर, जी आगे सर, आवाज आ रही है। क्लियर हुआ फंडोस्कोप? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर क्लासिकल माइग्रेन रिपीट करें। क्लासिकल मिग्रेन में जो है वो मैंने बताया था, क्लासिकल मिग्रेन जिसमें जो है यही सिम्टम्स, जिसमें जो है पेशेंट हैविंग अ कंप्लेन यूनिलेटरल क्लासिकल मिग्रेन आरा विदाउट आरा, ये प्रेजेंटेशन हो सकती है। पेशेंट हैविंग अ कंप्लेन ऑफ अ यूनिलेटरल थ्रोबिंग पल्सटाइल हेडेक एसोसिएटेड विद द नाusea, vomiting, this called the classical migraine। की आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आवाज पता नहीं क्यों, ये तो मैंने बहुत दफा सही करवाया है, सही हो ही नहीं रहा। अभी आ रही है? ओके, थैंक यू। आप थोड़ा लाउडली बोले ना। बहुत लाउड बोला है, अभी तो गला ही खुश्क हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज आपको। सर मेनिंजिसमस बताएं। मेनिंजिसमस मींस साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। आ रही है आवाज? हेलो? यस सर, आ सर रही है। कम आ रही है। हाँ, अभी तो वो क्या इससे ज्यादा है। आ रही है सर, आ रही है। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मतलब पेशेंट्स को मेनिंजिज्म तब होता है जब पेशेंट्स को हम देखते हैं पेशेंट में मेनिंजाइटिस हो, इनकेफ्लाइटिस हो, तो उसमें हम देखते हैं कि नेक रिजिडिटी एंड टर्निंग साइन। नेक रिजिडिटी एंड टर्निंग साइन वो स्पेशली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जो हम करते हैं पेशेंट्स का वेट पर। उसमें हमने नेक फ्लेक्स करवा के हैमस्ट्रिंग मसल्स की टेंडरनेस देखी और रेज लेग करवा के जो है देखनी है पेशेंट्स की नेक में। ये जो है क्लिनिकल साइन है मेनिंजिज्म, मींस में पेशेंट हैविंग a neck rigidity and the turning sign both are positive we call the patient having a meningism। ये स्पेशली occur in the meningitis to capsulitis in your patients। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। सर जी, सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ वो सेंड कर दूँ। यस सर, थैंक यू सर। यार अटेंड लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड करे शेड्यूल वाला जल्दी। आवाज वीडियो जो रीच निकल आएगा।